Hello, children. So, children, in chapter number 1, you have studied Euclid's division lemma or Euclid's division algorithm. Similarly, there is a division algorithm for polynomial also. Then it is nearly same. The only difference is that in Euclid division lemma, we have seen numbers. We have found SCF of any two numbers. Now here we will take instead of numbers polynomials. So let us take one example to illustrate this. Now one of the polynomial is given to us, px equals to 5x cube plus x square plus 3x plus 6, and we have to divide it by another polynomial gx, that is x square plus 2x plus 1. In class 9 you studied about linear polynomial, where we have to divide it by the polynomial which is not a linear polynomial but the degree of them is higher than that of linear. Now we are going to divide this polynomial by another polynomial with degree greater than 1. So let's start and divide this. So listen carefully how we are dividing it. We are going to prove this division algorithm, and you know what is division? That's checking for division. In class 5th and 4th you studied dividend equals to divisor into quotient plus remainder. So first we will divide and then check it also, and that is only the division algorithm and nothing else. So let's divide. Divided by another polynomial. Now take the first term and this first term. What we will multiply in x square, will get x cube first. So it is x, because 2 plus 1, 3 power. Now 5 is there. So 5. 1, 5 is a 5. So what will get? 5x cube. Subtract, cancel out. Now we have multiplied this first term with this 5x. Now we have to multiply the second term of this polynomial with 5x and 1 with 5x. Means we have to multiply all these three terms with 5x. Now the second one, 2x into 5x, 10x square. So where it will be? Near x square. So you have to always put like terms together. So x square and this is also x square. Now subtract. Plus become minus 1. What is coefficient? Nothing is means 1. 1 minus 10 minus 9. Now what left? 1 into 5x. So 5x. Now subtract again this one also. Plus becomes minus 3 minus 5 minus 2x. Now what left? Carry down 6. Now the first completed. Now till we have to divide कि जब तक कि इसकी पावर जो रिमाइंडर की पावर है, रिमाइंडर की डिग्री है, वो आपकी डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं आ जाती. अगर इक्वल है तो भी डिवाइड लगेगा. तो आपको डिवाइड कब तक लगाना है, जैसे आपने देखा ही है कि हम कब तक डिवाइड लगाते हैं. जैसे मुझे 12 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 1 जा 7. अब डिवाइड नहीं लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये से लेस आ जाता है. इसी तरह से हमें तब तक डिवाइड लगाना है, पावर को देखना है हमको. अगर इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, मतलब डिवाइड जाएगा. अभी एक बार वो डिवाइड जाएगा. अगर इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी कम आ जाती है तो फिर डिवाइड पॉसिबल नहीं होता. मगर अभी है इक्वल है. अब देखिए 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, -9 आ जाए तो -9 का एक्स स्क्वायर तो है ही, तो एक्स स्क्वायर इंटू -9 -9x स्क्वायर. माइनस का क्या हुआ? प्लस. प्लस से क्या हुआ? कैंसिल आउट. अब 2x में -9 का 2 9 जा 18 एंड x इज देयर, तो -18x. लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने हैं. माइनस का हुआ कितना? प्लस. -18 में से +18 में से -2 गए 16x प्लस का. अब क्या बच रहा है? 1 इंटू -9 -9. सब्ट्रैक्ट करें. माइनस का हुआ क्या हुआ? प्लस. 6 + 9 कितना हो गया? 15. अब हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया.
अब आप देखिए कि ये पावर 2 है, यहाँ पावर कितनी 1, मतलब अब डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, रिमाइंडर आर एक्स, और ये क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट क्यू एक्स। अब हम इस डिवीजन एल्गोरिथम को बना लेते हैं। क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप देखिए हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं, और आ रहा नहीं आ रहा है। डिवाइजर कितना है हमारा, ये डिवाइजर है जिससे हमने डिवाइड लगाया, और डिवाइजर, ठीक है। क्वेश्चन कितना आया, 5x माइनस 9 ये हमारा क्वेश्चन है, और रिमाइंडर कितना आया 16x प्लस 15, ये हमारा रिमाइंडर। अब आप करके देखिए डिविडेंड, वो अंदर वाला डिविडेंड आना चाहिए हमारा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर में 5x माइनस 9 का, फिर 2x में 5x माइनस 9 का, फिर 1 में 5x माइनस 9 का, और क्या बच गया है हमारे पास 16x प्लस 15, तो जो रिमाइंडर है वो एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्दर, 5x इंटू एक्स स्क्वायर 5x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 9x स्क्वायर, 2x इंटू 5x 10x स्क्वायर, 2x इंटू 9 माइनस 18x, 1 इंटू 5x 5x, 1 इंटू माइनस 9 एंड क्या बच रहा है 16x प्लस 15। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, एक्स क्यूब का कोई टर्म है नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब एक्स स्क्वायर वाला देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 10 में से 9 गए, 1 एक्स स्क्वायर या सिंपल एक्स स्क्वायर। अब सारे एक्स कलेक्ट कर लो, माइनस 18 प्लस 5 कितना हुआ 13, माइनस का माइनस 13 प्लस 16 कितना होता है प्लस का 3, और क्या बच गया लास्ट में 15 माइनस 9 कितना हुआ 6। अब आप देखिए ये डिविडेंड आ रहा नहीं आ रहा, देखिए ये देखिए ये हमारा डिविडेंड 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये डिविडेंड है हमारा 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और ये वाला देखिए 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो ये क्या हो गया हमारा px हो गया, ये डिविडेंड आ गया, ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड। तो हमने चेक भी कर लिया, तो दिस इज नथिंग ओनली डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स का। नाउ लेट्स डिवाइड। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर हम डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो लेट्स सी वन मोर डिवाइड, और उस डिवीजन एल्गोरिथम्स को भी वेरीफाई भी कर लेंगे हम कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है। तो सबसे पहले देखिए हमारा एक पॉलिनोमियल गिवन है। व्हाट इज पॉलिनोमियल गिवन टू अस, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अब आप देखिए कि हाईएस्ट पावर वाला सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो आपको हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, या इंक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपको इंक्रीज कर जमा लेना है, अरेंज कर लेना है। सबसे बड़ी पावर वाला सबसे पहले लिख लीजिए, तो आपकी गलती कभी नहीं होने वाली है। अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपकी गलती हो जाएगा। तो इट्स बेटर दैट ऑलवेज कीप द degree whose degree is more right at the first, so we'll write minus x cube, फिर क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस का, फिर माइनस 3x, और लास्ट में क्या आया 5। तो देखिए हमने इसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, 3 डिसेंडिंग पावर में बड़े से छोटा 3 2 1 और पावर कितनी 0। और इस तरह से जिससे आपको डिवाइड करना वो भी चेक कर लीजिए वो कैसा है। ये देखिए इधर देखिए x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो रहा है सबसे बड़ी पावर से लास्ट में आ रही है, तो इसको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस एक्स, फिर क्या आएगा माइनस 1। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, हमेशा पहले पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लीजिए पावर को, उसके बाद ही डिवाइड करिए ऑलवेज, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स डिवाइड। अब हम px को gx से डिवाइड कर देते हैं।
ये हो गया हमारा पी एक्स एक्स क्यूब 3 प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को हमें डिवाइड करना है माइनस x² प्लस x माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आपको फर्स्ट टर्म देखना है और इसका फर्स्ट टर्म देखना है। अब देखिए माइनस में क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस आ जाए, माइनस में तो प्लस का करना पड़ेगा। अब यहाँ 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए, तो सिंपल x की पावर 1 का, अब देखो 1 क्यों किया, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस, तो हमारा क्या आया, माइनस एक्स क्यूब आया, माइनस का क्या हुआ, प्लस, प्लस किया तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको सेकेंड टर्म से इसका मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ। अब आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए अगेन, तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 गए, 2x स्क्वायर हुआ। अब बचा माइनस 1 इंटू एक्स, कितना आया, माइनस एक्स आया। अब क्या करेंगे, वापस सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करने पड़ते हैं, माइनस का क्या हुआ, प्लस, माइनस 3 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों, माइनस 2x, और कैरी डाउन क्या करना है, 5, यू हैव टू कैरी डाउन प्लस 5। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू चिल्ड्रन, अगेन वी हैव टू डिवाइड। आपको कब तक डिवाइड लगाना है, जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री छोटी नहीं हो जाती है डिवाइजर की डिग्री से। अभी 2 है, यहाँ भी 2 है, मीन्स अभी एक बार डिवाइड और जाएगा, मीन्स एक बार डिवाइड और करना पड़ेगा हमें। सो लेट्स डिवाइड वन मोर टाइम, सो दिस टाइम वी नीड प्लस, सो वी हैव टू पुट माइनस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस देन ओनली प्लस। नाउ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है ही, अब क्या बच रहा है 2, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई किसका, माइनस 2 का, माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस 2 का करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस करा, ये कैंसिल आउट। अब x इंटू माइनस 2 कितना हुआ, माइनस 2x। नाउ अगेन माइनस बिकम प्लस, प्लस हुआ तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2, अगेन सब्ट्रैक्ट, 5 में से 2 गया, कितना हुआ, 3 हो गया। तो ये डिवाइड हो गया। अब इसकी पावर 0 है और इसकी पावर 2 है, अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा ये जो आया है ये हो गया रिमाइंडर क्वोशिएंट QX, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर RX। अब हमको वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम इसको कर लेते हैं, देखिए डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या करना है हमको, डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर क्या है, ये डिवाइजर हो गया हमारा, क्वोशिएंट क्या है हमारा, x माइनस 2 हमारा क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर क्या है हमारा, 3 हमारा रिमाइंडर आया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखिए डिविडेंड आता है नहीं आता है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर में पहला टर्म लिया, इसका पूरे में मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड टर्म लिया, इसका भी हमें पूरे में मल्टीप्लाई करना है, और माइनस 1 लिया, इसका भी हमें x माइनस 2 पूरे में मल्टीप्लाई करना है, और प्लस 3 एज इट इज चल रहा है, प्लस 3 हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्दर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ, माइनस एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 3। Okay, now what you have to see now, like terms, like term of minus x cube, no, so it will remain as it is, 2x square, now see all x square, 2x square and 1x square, 3x square, then another like term, minus 2x minus x minus 3x, and 2 plus 3 5. Now check whether we are getting the dividend or not. So let's check from our question only. What is our question given to us? Minus x cube, 3x square माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये तो क्वेश्चन था। अब हमें जो पावर अरेंज वाला वो देख लेते हैं, जिससे हमारा चेक आसानी से हो जाएगा। माइनस एक्स क्यूब, देखिए माइनस एक्स क्यूब
और ये भी कितना है -x। फिर देखिए सेकेंड वाला टर्म देखिए कितना है 3x² और -3x, तो यहाँ कितना है 3x² -3x, और क्या चल रहा है लास्ट में +5, ये भी कितना है +5। तो चेक हो गया, ये क्या आ गया हमारा डिविडेंड आ गया, तो डिविडेंड आ गया, डिविडेंड क्या था हमारा px, तो डिविडेंड भी आ गया, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हमारी चेक हो गई। तो अब इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ ली, जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी थी वैसे डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगी। तो क्या होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसी डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होगी, तो है इफ px, अगर px और gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, अगर ये दो कोई पॉलिनोमियल्स हैं विथ gx नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो डिवाइड कैसे होगा, देन वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट, और देन वी कैन फाइंड आउट, देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल्स, कौन कौन से पोलिनोमियल्स निकाल सकते हैं हम, QX निकाल सकते हैं और रिमाइंडर, क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा रिमाइंडर आएगा RX, सच दैट, किस तरह से आएगा सच दैट, कैसे आएगा कि डिविडेंड क्या है px, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है gx, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन क्या है qx, और रिमाइंडर क्या है rx। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, और हमेशा डिग्री RX क्या होती है, ये भी चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री जो होती है RX की या तो 0 हो जाए या उससे छोटी हो, किससे छोटी हो, या डिग्री जो होती है रिमाइंडर की वो किससे छोटी होनी चाहिए, हमेशा डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्री gx से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो ये हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आया डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल का, सिंपल है कि आपको डिविडेंड दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, तो आप डिवाइड करिए तो क्या आएगा क्वोशिएंट आएगा और क्या आएगा रिमाइंडर आ गया, और डिग्री रिमाइंडर की या तो 0 होनी चाहिए यार उससे छोटी होनी चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड टुडे डिवीजन एल्गोरिथम। सो we will do questions regarding this division algorithm polynomials in our next class. So thank you so much for watching this video. Goodbye all of you.